السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے بعد کنفرم سب کو ہو جانا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہی عبادت کیا جا سکتا ہے اور اللہ کے ہی سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کو ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس سے ہی مرادیں مانگ سکتے ہیں، اس سے ہی دعائیں مانگ سکتے ہیں اور اس سے ہی اولاد بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے سوا کسی سے نہ مانگ سکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے اولاد مانگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مانگتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں مانگتا۔ میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ مزار پر جانا اور وہاں پہ جا کر کے سجدہ کرنا، ان سے جا دعائیں مانگنا، اپنی مرادیں مانگنا کہاں تک صحیح ہے اور یہ کیا ہے۔ تو آپ لوگ اسکرین پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ویڈیو کو میں اپلوڈ کیا تھا، تو اس ویڈیو پہ کچھ بھائیوں نے کامنٹ کیا ہے، تو میں نے وہاں پر جا کر کے کامنٹ کو پڑھا اینڈ رپلائی بھی کیا۔ تو شاید ان لوگوں کو وہ بات اچھے سے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے رپلائی دیا لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری بات شروع کر دی۔ مطلب ایک رپلائی دینے کے بعد پھر انہوں نے اور رپلائی کیا، پھر میں نے کیا، پھر انہوں نے اور کیا۔ تو مطلب مجھے ایسا لگا کہ ان لوگوں کو یہاں پر کامنٹ کر کے سمجھا نہیں پائیں گے، شاید ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے یا پھر میں ٹھیک سے سمجھا نہیں پاتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ ویڈیو ہی کیوں نہ بنا لوں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں کامنٹ دکھاتا ہوں کہ ان بھائیوں نے کیا کیا کامنٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بھائی نے جو کامنٹ کیا ہے، تم کیا جانو ولی اللہ کا مرتبہ بابو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب کامنٹ کو پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ بزرگ آدمی ہیں، تو میں نے ان کو سلام کیا۔ ایسے تو سلام سب کو ہی کرنا چاہیے، تو میں نے ان کو پہلے سلام کیا، السلام علیکم حضرت۔ تو انہوں نے پھر سلام کا جواب بھی دیا۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں ولی اللہ کا مرتبہ الحمدللہ اچھی طرح جانتا ہوں، شاید آپ نہیں جانتے، اگر جانتے تو ولی اللہ کا جو مرتبہ ہے ان کو وہی دیتے، نہ کہ ولی اللہ کا بے حرمتی کرتے اور نہ ہی شرک کرتے اور نہ ہی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ کامنٹ کرتے۔ کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر میں نے جو کہا ہے یا پھر دکھایا ہے یا پھر جو ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، میں نے جو کہا ہے۔ اس کے بعد اس بھائی نے پھر ایک کامنٹ کیا کہ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا ماننا اور عبادت کے لائق سمجھنا۔ بالکل صحیح کہی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ نہ کہ مزار پر جا کر چادر چڑھانا، ہم لوگ ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں، یعنی ان کے صدقے رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس بات پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، اس کے بعد جو آپ لکھے ہیں کہ ان کے صدقے یا پھر ان کو وسیلہ بنا کر کے آپ دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے تم ڈائریکٹ دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ سے مانگنے کے لیے کسی کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے تم دعائیں مانگو، اپنی مرادیں مانگو، میں تمہاری مرادوں اور دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد اس بھائی نے جو لکھا ہے، اگر میں تم سے کہوں کہ اپنے دوست کے خاطر مجھے 10 روپیہ دے دو تو کیا تم نہیں دو گے؟ تو میرے بھائی 10 روپے کے بعد جہاں تک آتی ہے تو میں ہاں، اگر میرے دوست کے خاطر تم مانگ رہے ہو تو ضرور دے دوں گا۔ 10 روپے کیا میں 100 روپے بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر میرے پاس اگر 10 روپے ہو یا پھر 100 روپے ہو تو ہی آپ کو میں دے سکتا ہوں۔ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر میرا من چاہے من بدل جائے تو پھر نہیں دے سکتا۔ کہ مجھے اگر لگے کہ آپ مجھ سے 10 روپے یا پھر 100 روپے لے کر کے لوٹائیں گے نہیں، یا پھر مجھے ایسا بھی لگے کہ میں 10 روپے یا پھر 100 روپے آپ کو دے دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اسی طرح سے اگر آپ جس طرح سے آپ نے اگزامپل مثال دی ہے اسی طرح سے میں بھی دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ جو ہے ہر چیز پر کامل ہے، اللہ غنی ہے۔ اسماء الحسنی جو 99 نام ہے اس میں ہے الغنی، اللہ بہت بڑا غنی ہے۔ اللہ نے پورے دنیا کو بنایا اور جتنے دن سے بنایا ہے ہی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی ہے۔
क्योंकि अल्लाह तो हर चीज़ पर कामिल है, वो गनी है। इंसान का एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा। और आप कह रहे हैं कि मेरे दोस्त के खातिर आप मुझसे मतलब 10 रुपये मांग रहे हैं, तो एक दिन मैं दे सकता हूँ भाई, 2 दिन भी किसी तरह दे ही दूंगा, तीसरे दिन भी अगर आप आएंगे दे तो दूंगा, लेकिन मैं सोचूंगा कैसा इंसान है, मांगते रहता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ आप जितना मांगेंगे, जितना चाहेंगे, जितनी अपने दुआएं मुरादें मांगेंगे, अल्लाह उतना खुश होगा और आपको खुशी से देगा। लेकिन वही बात अगर आप इंसान से मांगते हैं ना, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन मुँह बनाएगा कि कैसा इंसान है, मांगते रहता है। तो किसी इंसान से जो मांगने का तरीका है और किसी इंसान से मदद मांगना जो असबाब से हट के ना हो, किसी इंसान से ऐसा चीज़ मांगो जो असबाब के अंदर हो, यानी दुनिया और दुनिया की चीज़ें जो है हम लोग के थोड़ी बहुत बस में है। जैसे हम लोग को जो अल्लाह ताला ने नवाजा है, मैं आपको वही दे सकता हूँ, ना कि जो अल्लाह दे सकता है वो मैं नहीं दे सकता। कोई भी इंसान, कोई भी वली, कोई भी पीर नहीं आपको दे सकता, किसी के वसीले से भी आप नहीं मांग सकते, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि तुम मुझसे डायरेक्ट मांगो। अगर आपका चप्पल भी फट जाए तो अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो। किसके जरिए वो अल्लाह दे, वो आलम गैब की शय है, वो किसके जरिए से आपको देना चाहे वो खुद आपको दे दे। लेकिन आप किसी के ज़रिए से मांगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन आप किसी को ज़रिया बनाएं, किसी पीर को, किसी वली को, हरगिज़ नहीं। उसके बाद एक भाई ने और कमेंट किया है कि आप बोल रहे हैं कि वलीउल्लाह का मर्तबा जानते हैं, तो इसमें शिर्क क्या है? और लिखा है, आपसे गुजारिश है कि मुझे समझाइए और ये भी बताइए कि मज़ारों पर जाना शिर्क है और उनसे इल्तिजा करना बेहरमती है। तो मेरे भाई, आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि इसमें शिर्क क्या नहीं है। क्या अल्लाह के सिवा किसी से दुआएं मांगना, मुरादें मांगना, मन्नतें मांगना, औलाद मांगना और सजदा करना ये शिर्क नहीं तो क्या है? जो इंसान के बस में है ही नहीं, आप उनसे मांग रहे हो। वलीउल्लाह से जो आप मांग रहे हैं, औलाद मांग रहे हैं, आप मुझे बताइए कि वलीउल्लाह एक चींटी तक नहीं बना सकता, एक चींटी तक नहीं बना सकता। उसके लिए अगरचे सब वलीउल्लाह इकट्ठा हो जाए, दुनिया और दुनिया की सारे मखलूक़ात इकट्ठा हो जाए, तो एक चींटी उनसे नहीं बन सकती, उसमें जान नहीं दे सकते। तो आप औलाद कैसे मांग रहे? किसी वली से, किसी पीर से, किसी मज़ार में जा कर के उनसे मुरादें मांग रहे, उनसे दुआएं मांग रहे हैं और वहाँ पर जा कर के सजदा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल हराम है और शिर्क है। और इसके शिर्क होने में कोई शक नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। एंड उसके बाद उसी भाई ने फिर कमेंट किया है कि अगर आपसे कोई रूठ जाता है तो डायरेक्ट उससे आप बात करने की या कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए आप उसके करीबी से बात मनवाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब उनके रसूल, उनके नबी, उनके वली होते हैं और हम इन्हीं से बात मनवाते हैं। और यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि तुम जाहिलों को ये बात समझ में ना आएगी, अगर समझ में आती तो देवन नहीं तुम सुन्नी हो। तो मैं इस बात पर ये कहना चाहूँगा, ये जो सुन्नी और देवंदी अहले हदीस इसमें जो भेदभाव कर रहे हैं, तो इन जाहिलों की वजह से बहुत सारे आवाम जो है दीन से भटके हुए हैं, बिदअतों में फंसे हुए हैं, गुनाहों में फंसे हुए हैं, शिर्क कर रहे हैं। और उसके बाद इसके पहले बात का जो जवाब मैं देना चाहूँगा कि अगर आप किसी से रूठ जाते हैं तो उसको मनवाने के लिए उसके करीबी से, किसी करीबी से, भाई से हो या फिर दोस्त से हो, बनवानी पड़ती है, मनवानी पड़ती है, ठीक है ना। बार बार वही एग्जाम्पल, वही सब एग्जाम्पल दे रहा है, तो चलो मैं इसी के लैंग्वेज में इसको समझाता हूँ। तो अगर इंसान रूठ जाता है किसी इंसान से, दोस्त दोस्त से रूठ गया, भाई भाई से रूठ गया या फिर बाप बेटा से रूठ गया, कि आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में जो इंसान किसी से रूठ जाता है तो अगर बात बन जाती है 2-3 दिनों में, 4 दिनों, 5 दिनों में, 10 दिनों में भी बन जाती है तो वो तो ठीक है। लेकिन अक्सर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि भाई भाई से रूठे हुए कई साल हो जाते हैं, उन लोगों के आपसी में बात नहीं होती, दोस्त दोस्त रूठने के बाद ज़िंदगी कट जाता है, बात नहीं होती, बाप से बेटा का बात नहीं होता, सास के बहू से बात नहीं होती, सालों साल 10 साल तक ऐसा चलता रहता है। वही अगर अल्लाह ताला की बात करें
تو اللہ ताला अगर किसी बंदे से रूठ जाता है किसी गुनाह की वजह से, एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने शिरक कर लिया, गुनाह कबीरा कर लिया, तो अल्लाह अगर उससे रूठ जाता तो बंदा को चाहिए कि वो अल्लाह से उससे डायरेक्ट माफ़ी मांगे, तौबा करे, गुनाहों की माफ़ी तलब करे। तो अल्लाह कहता है तुम तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूँगा, दुआओं को कबूल करूँगा। अल्लाह खुद कहता है तुम डायरेक्ट मुझसे मांगो, ना कि किसी के ज़रिए से, ना कि किसी वसीले के। इस भाई ने ये कहा है कि अल्लाह से वसीला, उससे बात मनवाते हैं पीर वली से, तो अल्लाह को मनाने के लिए किसी पीर वली की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। उससे आपको अल्लाह से डायरेक्ट मांगना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा। और दुआएं मांगने के लिए क्या है, मस्जिद है, मसाजिद है, आप जाके 2 रकात नफल पढ़े और अल्लाह से रो रो करके दुआएं मांगे, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा, आपके मुरादों को पूरा करेगा। सिर्फ सिवाय अल्लाह के किसी को सजदा नहीं कर सकते। अगर किसी को आपने सजदा कर लिया, किसी के सामने माथा टेक लिया, किसी से औलाद मांग ली या फिर उससे मुराद मांग ली, दुआएं मांग ली, तो ये शिरक है। और इसके शिरक होने में कोई शक नहीं, 100% शिरक है। और अल्लाह को मनाने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, तौबा माफ़ी तलब करो, तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। शिरक का गुनाह जहाँ तक है कि अगर कोई इंसान शिरक करता है, अगर शिरक करने के बाद वो मर गया, कभी नहीं बख्शेंगे, वो जहन्नम में दाखिल होंगे, जलील व खाक होंगे। और अगर शिरक करने के बाद, जो शिरक करने के बाद अगर बंदा तौबा कर लेता है, उसको जान लेता है कि ये शिरक है, इसके गुनाह, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, तो उसके बाद अगर बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह शिरक के गुनाह को भी माफ़ कर देगा दुनिया में। अगर वो तौबा कर लेता है, उसके बाद अगर मरता है तो फिर वो हिसाब व किताब में जो होगा वो होगा। लेकिन अगर बंदा शिरक करता है, उसके बाद अगर दुनिया में ही अल्लाह से तौबा कर लेता है तो वो शिरक अल्लाह माफ़ कर देगा। और अगर शिरक करने के बाद वो मर जाए तो हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, उससे क्या होती है कि मौत आखिरत की याद दिलाती है। अगर आपका कोई रिश्तेदार या फिर कोई ऐसा बुज़ुर्ग मतलब इंतकाल कर चुका हो, उनके कब्र में जाकर के आप दुआ कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ना कि उनसे जाकर के आप दुआएं मांगे, मुरादें मांगे, औलाद मांगे, सजदा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल शिरक कर रहे हैं और इसके शिरक होने में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में नहीं आई है या फिर आप समझ करके भी समझना नहीं चाहते, तो आपको जो भी अच्छा लगता है, मतलब जिस भी आलिम को आपको अच्छा लगता है, जिस भी मुफ्ती को आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये सही बयान कर रहा है या फिर सही मसला दे रहा है, तो उसके पास आप जाइए एंड उसको ये सवाल कीजिए कि मज़ार पर जाकर के या फिर किसी कब्र में जाकर के सजदा करना, उससे मुराद मांगना, उससे दुआएं मांगना, उससे औलाद मांगना कहाँ तक सही है और ये क्या है। उसके बाद उससे आपको जवाब मिलने के बाद मुझे कमेंट करें, ज़रूर करें कि उन्होंने आपको क्या कहा एंड आपके सवालों का जवाब क्या क्या दिया। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ पूछना है, कोई भी चीज़ आपको डाउट लग रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।